Good morning, students. How are you? Myself Abhik Roy from the Mathematics Icon channel, and hope you are all fine and everything is going very smoothly, and the studies is going very smoothly that I am expecting from you. Uh, Very good morning to all, and uh, this in this channel the various discussion and various things are being discussed. Actually, there's regarding the mathematical solutions, regarding the different chapters as well. Okay, so here I am presenting the binary operation from the function chapter, relational function chapter. This is the last concept of the relational function chapter. Okay, so in this video I will cover some solutions regarding the binary operations as well. Okay, so from the binary operation, how can you solve the binary operation questions? How can you get the idea which type of operation is binary? Okay, that means as I told you, the binary operation means the operation between the two elements. Okay, just see the last video. That I think from that video you will get the idea what is the binary operation and what is the construction actually. Okay, and how it can be constructed. Okay, so in this binary operation chapter, I think the various questions and various solutions are there. And now we are going to solve the different questions from the binary operation. Okay, so सबसे पहले ये जो है हम लोग ये देखो, ये subscribe, share and like, these three things. In every video I used to tell the same thing, that subscribe, like and share with everyone. Okay, so that each and every students of my country can enjoy the classes as well in this lockdown period. And after this lockdown, these classes will be continued till the last breath of my life. Okay, so here actually this last day I couldn't upload any kind of video because I was busy at the time yesterday. So today I will upload the two videos now in the morning and in the evening session also. Okay, so in this videos I think in this class I will cover the commutative and the associative property of the binary operation as well. Okay, and in the next video we will cover the distributive property and the identity and inverse element. Okay, so if I cover all the things in one video, then I think this video will be longer. Okay, and it will consume too much data. So that's why I will cover these two things in one video, and in the next video I will cover the rest of the things, that is the distributive and inverse and identity element as well. Okay, so let's start. Okay, शुरू करते हैं यहाँ पर. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन शुरू करते हैं. देखते हैं कैसे हम लोग ये सॉल्व करते हैं, कैसे ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन जो है उसको एक्चुअली दिस सॉल्यूशन किया जाता है. ये सब हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में. पूरा वीडियो को एकदम पूरा देखना है आप लोगों को. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आइडिया मिलना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करिए, सब वीडियो को पूरा जितना सारा वीडियो अपलोड हुआ है सब वीडियो को, ईच एंड एवरी वीडियो शुड बी वॉच्ड फुल्ली. Okay, so then after that you will get the idea what is going on in this chapter. Okay, so actually this very good responses is coming from your side, but this is not enough. Okay, so just we have to spend a lot of times with the mathematics and with the lectures as well. Okay, just after watching this lecture, after watching this video, you will have to do some questions regarding this solutions, what is going on, which is going on in this in various classes. So you have to practice, you have to do, and you have to raise the questions as well. Okay, if you have any doubt regarding any concept in anything, just ask me in the comment box. Just I will try to cover all the questions and all the doubts. Okay, whatever is arised in your mind. Okay, just I will try. Okay, so and this just subscribe, share and like as well. Okay, so now let's start our journey. Just at first we will start
with some basic questions from the binary operation, and this type of questions are very important for the 1 marks question. Okay, and it is very important for the entrance studies also. Okay, so that means how can you get the idea that is the given operation is the binary operation. That means how can you check whether it is binary or not. Okay, so this type of questions will be done right now. Just write the first question. Okay, लिखो and operation star on z, that means इंटीजर के ऊपर एक ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, which is given by a star b, that means a और b के बीच मारामारी हो रहा है और आउटकम जो है a to the power b आ रहा है. ठीक है, फॉर ऑल a और b कहां से चूज करोगे तुम? ऑब्वियसली इंटीजर सेट से. ओके, चेक whether it is binary or not, right? Okay, now here you have to write given a star b equals to a to the power b for all a comma b belongs to z. है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो a और b का वैल्यू मुझे कहाँ से चूज करना है? इंटीजर सेट से चूज करना है. ठीक है, और इंटीजर सेट आप लोगों को पता ही होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी, और इधर जीरो मिडल में जीरो रहेगा और इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन माइनस इंफिनिटी. ओके, तो यहाँ पर जेड सेट से तुम्हें ए और बी का वैल्यू चूज करना है. तो यहाँ पर लेट ए और बी का वैल्यू कुछ भी तुम चूज करो, कुछ भी मन में जो आए तुम चूज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज देखो, यहाँ पर a इक्वल्स टू सपोज, यहाँ पर तुम्हें चेक करना है ये क्या बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं. ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन ये कैसे चेक करते हैं? a और b का वैल्यू जो है हम लोग z से इंटीजर से चूज करेंगे. करने के बाद जो है यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे जो आउटपुट है. ठीक है, आउटपुट मारामारी करने के बाद जो आउटपुट निकलता है उस आउटपुट में हम लोग पुट करेंगे. करने के बाद अगर ये जो आंसर, इसका आंसर अगर इंटीजर में आया, then the binary operation can be constructed by this given operation. Okay, other than that we can't construct any kind of binary operation by using the values of a and b. Okay, so here if I choose from the integer, well, anything we can choose from the integer set here. a equals to suppose 2 ले लेते हैं, क्या होता है? b equals to suppose -1 ले लेते हैं. -1 भी इंटीजर में है, 2 भी इंटीजर में है, चेक तो कर सकते हैं. सो s स्टार b, तो s स्टार b मतलब क्या होता है? 2 स्टार -1. ओके, इक्वल्स टू a टू द पावर b मतलब क्या है? 2 टू द पावर -1. a टू द पावर b, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1. 2 टू द पावर -1 दैट इज हाफ. हाफ के इंटीजर में बिलोंग करता है यहाँ पर? आई डोंट थिंक सो. दैट मीन्स हाफ ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है. तो दैट मीन्स यहाँ पर a और b का वैल्यू अगर मैं इंटीजर से चूज करूं, आउटपुट जो है वो इंटीजर में नहीं आ रहा है. जो मैंने एग्जांपल दिया है, सपोज मैं और सलमान खान मारामारी कर रहे हैं, जीतेंगे तो मैं या फिर सलमान खान. यहाँ पर जॉन अब्राहम आके जीत गया, ये तो नहीं हो सकता है. लेकिन यहाँ पर जो a और b का वैल्यू है वो हम लोगों ने इंटीजर से चूज किया है. जो आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर में ही आना चाहिए. अगर वो इंटीजर में नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन एट ऑल. तो हियर वी कैन सी इफ आई चूज a equals to 2 and b equals to -1, the output is 2 to the power -1 half, which is not belongs to the z set as well. So star is not binary. Just you have to give the statement here. Star is not binary. That means this given operation is not a binary operation at all. Okay, ठीक है, ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. लिख लो. ओके, 1 2 3 4 5 हो गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. नेक्स्ट में जाओ. नेक्स्ट में क्या होता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है? इफ s इक्वल्स टू, s एक सेट दिया गया है, यहाँ पर इंटीजर है, फिर रियल नंबर, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है. यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेट दिया गया है. एंड
स्टार इज ऑन एस, एस के ऊपर जो स्टार एक ऑपरेशन है वो बनाया गया है। अब एस स्टार बी जो है इक्वल टू क्या दिया है, रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो यहां पर एक स्टार ऑपरेशन दिया गया है कौन सा सेट के ऊपर, एस सेट के ऊपर। ठीक है, अब एस सेट के ऊपर एस सेट में कुछ एलिमेंट्स दिया गया है, देखो 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पर ए और बी का वैल्यू जहां से भी चूज करूं मैं, मुझे एस से ही चूज करना पड़ेगा और आउटपुट जो है वो भी एस में ही रहना पड़ेगा। रिमेंबर दिस थिंग, तुम ए और बी का वैल्यू जिस सेट से चूज करोगे, रिमाइंडर जो होता है यहाँ पर देखो क्या दिया गया, रिमाइंडर जो है वो भी, जो आउटपुट है, रिमाइंडर छोड़ो, आउटपुट जो है वो भी सेम सेट में ही रहना पड़ेगा। अगर सेम सेट में नहीं आया तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर देखो, सपोज हम लोग यहाँ पर गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय 6। ओके, नाउ लेट्स चूज, हम लोग चूज कर लेते हैं कोई भी है। यहाँ पर ए और बी का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि रिमाइंडर निकलेगा। किसके रिमाइंडर निकलेगा, अगर ये जो ए और बी का वैल्यू कुछ भी वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 4 5। ओके, चूज करेंगे, करने के बाद ये जो ए बी है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइडेड बाय 6 करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही होगा आउटपुट यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज ए बी का वैल्यू, ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं सपोज। सो ए बी इक्वल्स टू व्हाट, 6। सो ए बी इक्वल्स टू 6 आ गया ना, ये ए बी का आंसर 6 आ गया। अब ये 6 को इफ 6 is divided by 6, क्योंकि जो आंसर आएगा उसको हम लोगों को किससे डिवाइड करना है, 6 से। देन रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आई थिंक। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 जो है वो क्या ये सेट में बिलोंग करता है, एस सेट में। जो रिमाइंडर 6 निकला, 0 निकला, वो 0 क्या एस सेट में बिलोंग करता है। देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, which is not belongs to the S set, so star is not binary, देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 not belongs to S और आ रहा है। That means from which set, that means from where actually this the values of A and B are chosen. Okay, the output have to be in the same set, as well. Okay, that means if you are choosing the values of A and B from S set, then the values of the output will have to belong in the same set as well. Okay, so if the output is not coming in the same set, then this operation cannot be exclaimed as the binary operation as well. Okay, so here star is not binary. हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखो स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो चेक करना है। हो गया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन चेक करो वो बाइनरी है कि नहीं। ऐसे ही तुम्हें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ऑपरेशन दिया जाएगा, वो तुम्हें चेक करना है कि ये बाइनरी है कि नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर सपोज and operation this is the operation sign on n, that means natural number, and given by a this a to the power b plus b to the power a for all a comma b belongs to the natural number set. Obviously check it is binary or not.
तुम्हें चेक करना है ये बाइनरी है कि नहीं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ए और बी का वैल्यू, ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी belong to the natural number set. So natural number set, as you all know, the natural number set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dot 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 plus infinity. That means natural number में हम लोग कभी भी जीरो या फिर जीरो से नीचे चूज नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर जो है ए और बी का वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर से चूज करेंगे। तो करके देखते हैं। गिवन ए दिस इक्वल्स टू ए टू द पावर बी प्लस बी टू द पावर ए। ओके, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू हम लोग कहाँ से चूज करेंगे, ए और बी का वैल्यू नेचुरल नंबर से चूज करेंगे। अब बोलो, नेचुरल नंबर से कोई भी वैल्यू हम लोग चूज करेंगे, मन में जो आए चूज करो, इसका आंसर क्या नेचुरल नंबर से बाहर जाएगा क्या? चेक कर लेते हैं। सपोज लेट a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3। माइनस वैल्यू तो हम लोग चूज नहीं कर सकते, और जब माइनस वैल्यू चूज नहीं कर सकते तो यहाँ पर ये जो पावर्स हैं कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, और जब निगेटिव ना आए तो यहाँ पर फ्रैक्शन होने का तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फ्रैक्शन जब तक नहीं आएगा तो सब वैल्यूज जो है वो नेचुरल नंबर में ही रहेगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर सब पॉजिटिव, ए और बी का वैल्यू पॉजिटिव चूज कर रहे हो, आउटपुट भी सब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो आउटपुट जो है वो नेचुरल नंबर में ही आ रहा है? सो जस्ट यू कैन चेक ऑल्सो। a to the power b, that is 2 to the power 3 plus 3 to the power 2. Answer is 8 plus 9, that is 17, which is belongs to the natural number set. Just like that, if you are choosing 1 and b equals to 5, whatever, just you can choose 1 to the power 5 plus 5 to the power 1, that is 1 plus 5 equals to 6, which is belongs to the natural number. So just like proceeding this way, you can choose any values of a and b here. After that you can see that all the outputs are belong to the natural number set. So if the outputs are belong to the natural number set, then this given operation, so not star actually, this is binary. ये बाइनरी ही होगा, क्योंकि ऑल द आउटपुट, सब आउटपुट जो है वो नेचुरल नंबर में ही आ रहा है। तो दैट मीन्स ये तो बाइनरी होगा। तो ऐसे ही जो है 1 मार्क के लिए तुम्हें चेक करने के लिए बोला जाएगा कि वेदर इट इज बाइनरी और नॉट, ऐसे तुम्हें दिया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है जब हम लोग किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी चेक करते हैं, है कि नहीं। तो यही तुम्हें चेक करना है कि ए और बी का वैल्यू कुछ भी पुट करो यहाँ पर, करने के बाद अगर आउटपुट जो है वो सेम सेट में नहीं आया, दैट मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर सेम सेट में आ गया आउटपुट, ऑल आउटपुट, सब आउटपुट आने के एटलीस्ट एक आउटपुट अगर सेट से बाहर चला गया तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ए और बी का वैल्यू 100 वैल्यूज चूज कर रहे हो, ठीक है, बट एक वैल्यू के लिए एटलीस्ट 99 सेटिस्फाई हो गया। अब एक वैल्यू के लिए ये आउटपुट जो है वो सेट से बाहर चला, तब क्या होता है, तब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो दैट मीन्स 0 is that means this operation is not binary as well. Okay, now next question में जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, if a star b equals to LCM of AB, फॉर ऑल ए और बी कहां से चूज करना है, नेचुरल नंबर से चूज करना है। प्रूफ इट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ओके, तुम्हें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। ऑपरेशन दिया गया है, जस्ट तुम्हें चेक करना है ये क्या कम्यूटेटिव होगा या फिर एसोसिएटिव होगा, ठीक है। एलसीएम निकालना तो आता है सबको। अब देखते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। हियर गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ए और बी का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। अब सब एलसीएम यहाँ पर तुम्हें चेक करना क्या है,
कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना है. सो हियर commutative. If this question, this is a binary. ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है बाइनरी दिया गया है, तुम्हें चेक करना है ये बाइनरी ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है. यहाँ पर देखो बाइनरी ऑपरेशन चेक करना जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर तुम चेक करना भी चाहो चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. यहाँ पर ए और बी का वैल्यू कहाँ से चूज करना है, नेचुरल नंबर से चूज करना है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर दो नेचुरल नंबर का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम तो कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं आएगा. दो नेचुरल नंबर के एलसीएम तो नेचुरल नंबर ही आएगा, है कि नहीं. तो ऑब्वियसली देखने से ही पता चल जाता है ये बाइनरी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर सब आउटपुट जो है नेचुरल नंबर में ही आएगा, है कि नहीं. तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चेक करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है. कम्यूटेटिव गिवन A star B equals to LCM of AB. Okay. B star A LCM of BA. ठीक है. अब एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल एक ले लेते हैं. LCM of 3,2 क्या आएगा आंसर, ऑब्वियसली 6 हो रहा है, 6 आएगा 3 और 2 का. अब LCM of 2,3 इसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा. तो देखो यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गया, फिर भी आंसर तो सेम ही है ना. 2 और 3 के एलसीएम 6 ही आएगा, 3 और 2 के एलसीएम भी 6 ही आएगा. सो स्टार इज, सो ऐसे लिख लो, सो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ये डेफिनेशन लिखे थे, ठीक है कि नहीं. तो दैट मीन्स स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव हो गया, कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया, है कि नहीं. अब एसोसिएटिव में आओ. एसोसिएटिव में आओ. एसोसिएटिव में देखो क्या हो रहा है. एसोसिएटिव में यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या दिया गया है, एलसीएम ऑफ ए बी, ऐसे दिया गया है. ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी दिया गया है. अब तुम्हें एसोसिएटिव प्रूफ करना है. तो लेट एसोसिएटिव के लिए तो 3 एलिमेंट चाहिए. ए बी सी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट. नाउ देखो तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखो ऐसे लिखा जाता है उसको. इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए स्टार, ये बी स्टार सी का आंसर मैंने बोला था कि फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसका काम तुम्हें पहले करना है. ये एलसीएम ऑफ क्या आएगा, बी कॉमा सी, है कि नहीं. तो एलसीएम ऑफ बी एंड सी क्या आएगा, बी सी आएगा ऑब्वियसली. जैसे 3 और 2 के एलसीएम 3 इंटू 2 आ गया, तो बी सी आएगा. तो यहाँ पर अब स्टार ये आ गया, अब इसका आ गया एलसीएम ऑफ किसका ए कॉमा बी एंड सी. सो यहाँ पर भी सेम, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ए बी सी आ रहा है, देखो, है कि नहीं. सो नाउ ए स्टार बी स्टार सी, है कि नहीं. इसका भी चेक करके देखो तो क्या आ रहा है. ए स्टार बी मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी हो गया स्टार सी. अब एलसीएम ऑफ ए बी कितना होता है, ए बी स्टार सी, दैट मीन्स क्या होता है, एलसीएम ऑफ किसका ए बी कॉमा सी. तो सेम मल्टीप्लाई कर लो ए बी सी. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, तो सो ऐसे लिख लो, सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी. ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना, इसका आंसर भी एबीसी, इसका आंसर भी एबीसी. तो देखते हैं दोनों का आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है. तो अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है दैट मीन्स व्हाट, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जो है ठीक तरह से देखो. यहाँ पर एसोसिएटिव क्या लिखा था कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी. अगर दोनों का आंसर सेम हुआ तो ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी एसोसिएटिव होगा. ठीक है. अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है दैट मीन्स इक्वल आंसर्स नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई
नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। है कि नहीं? तो यहां पर सपोज ऐसे ही क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ऐसे ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये सब जितना सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, अब जो है फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर इफ देखो, एक दिया गया है ए स्टार बी इक्वल्स टू, क्या आ गया आंसर, आउटपुट क्या है बी, where स्टार ए क्रॉस ए टू ए। ओके, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ए एक सेट है, क्या सेट है हम लोगों को ये दिया नहीं गया है। ठीक है, प्रूव दैट ना लिखे काम करो, चेक दैट लिख लो। चेक दैट स्टार इज commutative and associative or not। ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होता है बी, ये आउटपुट है। इट मीन्स ए और बी मारामारी कर रहा है, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जो जीता कौन, बी जीता, आउटपुट बी निकला। तो यहाँ पर फॉरऑल ऐसे लिख लो, फॉरऑल ए और बी का वैल्यू कहां से चूज करोगे, एसेट से चूज करेंगे। ठीक है, अब एसेट क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, एसेट क्या है कुछ भी हो, यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया गया है आउटपुट क्या है। सो नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ए स्टार बी इक्वल्स टू, आंसर कितना आया, सिमिलरिटी थोड़ा देखो, ए और बी के बीच फाइट हो रहा है। जीतेगा कौन, जो सेकंड पार्टिसिपेंट है वो जीत रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स बी स्टार ए करेंगे तो यहाँ पर सेकंड पार्टिसिपेंट कौन है, ए होगा। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। हो गया, कम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। देखो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है। सिमिलरिटी हम लोगों ने क्या देखा है कि दो लोग फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो जीतेगा कौन, जो सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर ए स्टार बी, उसमें सेकंड पर्सन कौन है, पी है, इसलिए आंसर बी निकला। और बी स्टार ए, उसमें सेकंड पर्सन कौन है, ए होगा, तो आंसर क्या होगा, जीतेगा कौन, ए। तो दैट मीन्स दोनों का आंसर देखो आउटपुट सेम नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग इक्वल नहीं लिख सकते। अगर ये इक्वल होता है देन इट वुड बी the binary the commutative as well, but here this condition, this equal property is not satisfying by the given operation as well. That's why this star is not commutative. Okay, commutative नहीं होगा, है कि नहीं। अब एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव ए स्टार बी कितना दिया गया, इक्वल्स टू बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहां से, ए। नाउ एसोसिएटिव कैसे होता है, ए स्टार बी स्टार सी, उसका आंसर क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ये दोनों का आंसर सेम होना पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो है दोनों का आंसर सेम होना पड़ता है। यहाँ पर देखो ये ए स्टार बी स्टार सी, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ पर मारामारी किसके बीच हो रहा है, बी और सी के बीच। जीतेगा कौन, जो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या है, सी। तो दैट मींस ए स्टार तो रहेगी, दोनों में जीतेगा कौन, सी, है कि नहीं। सो अब मारामारी ये दोनों के बीच हो रहा है। अब फाइनल चैंपियन कौन होगा, जो सेकंड है, दैट मींस सी, व्हिच इज बिलोंग्स टू द सेट ए। अगेन ए स्टार बी स्टार सी, देखो फर्स्ट ब्रैकेट का जो है पोजीशन है हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब मारामारी पहले किसके बीच हो रहा है, ए और बी के बीच। तो जीतेगा कौन, बी, जो सेकंड पर्सन है। तो आगे आउटपुट आ गया। अब सी, अब बी के साथ सी का मारामारी हो रहा है, जीता सी, सेकंड पर्सन जो है। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार इज
associative. Star is associative. Star is associative. ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे, लिख सकते हैं। अब जो है देखो हो गया, लिख लो ये 1 2 3 4 5 seconds 6 7 8 9 10 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, धराधर हो जाता है ये सब क्वेश्चंस। एकदम सिंपल चैप्टर है, सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन है शायद ना। इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए कोमा बी कहां से, जेड इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है, इज ए बाइनरी, बाइनरी दिया गया है, ये बाइनरी होगा, है कि नहीं। चेक इट इज commutative and associative और नॉट। तुम्हें चेक करना है ये सब, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है कि नहीं है वो तुम्हें चेक करना है। ठीक है, अब हियर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव होने के लिए देखो बी स्टार ए, उसका आंसर क्या होगा, सिमिलरिटी थोड़ा देखो यहाँ पर जो गिवन है, ए स्टार बी दोनों के बीच मारामारी हो रहा है। आउटपुट क्या है, दोनों का प्लस फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का प्लस फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखो दोनों का प्लस फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या। देखो ए प्लस बी प्लस ए बी, बी प्लस ए प्लस बी, बात तो एक ही है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए तो निकल रहा है। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज व्हाट, कम्यूटेटिव, है कि नहीं। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव में जाओ। एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी, देखो इसका आंसर निकाल रहे हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है, ए तो रहेगा अपनी जगह। अब ये दोनों का प्लस फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो दोनों का प्लस फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब आ गया देखो ये दोनों, ये दो अलग अलग है। अब इसका सिमिलरिटी क्या है, दोनों का प्लस, ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज दिस वन, बी प्लस सी प्लस बी सी, है कि नहीं। देखो फिर उसके बाद उसका देखो, सो ए स्टार बी स्टार सी का आंसर क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, है कि नहीं। हो गया, इसका पूरा आंसर निकल गया। नाउ अब दूसरा वाला चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला पहले ब्रैकेट बी और सी के बीच में था, अब जो है ए और बी के ऊपर है। देखो यहाँ पर दोनों का प्लस फिर मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का जो काम है, ए प्लस बी प्लस ए बी, देखो दोनों का प्लस फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एक टर्म पूरा, ये एक टर्म, ये क्या सिमिलरिटी है, पहले दोनों का प्लस करना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, आई थिंक देखो, है कि नहीं। तो उसको अगर ठीक तरह से सजा के लिखिए, यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, बी सी भी है प्लस बी सी प्लस ए बी सी, दोनों का आंसर सेम है क्या। देखो तो ये दोनों का आंसर
सेम है क्या? हाँ सेम ही है, तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? सो दैट मीन्स so A star B star C equals to A star B star C. So star is associative. Star is associative. Star is associative. है कि नहीं? इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है ये सब, है? इतना सुंदर क्वेश्चन है, हो गया है कि नहीं? ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट, चैनल को अगर ये सब क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ओके? और please give me the encouragement as well, okay? Now शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो है 7, ओके? अब नेक्स्ट, हियर इफ A star B equals to AB by 4 for all, A और B का वैल्यू कहाँ से चूज करना है? Q मीन्स रेशनल नंबर सेट इज बाइनरी। बाइनरी दिया गया है ऑलरेडी, बाइनरी है, ठीक है? नाउ चेक इट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव और नॉट, ठीक है? तो यहाँ पर A स्टार B क्या दिया गया है? AB by 4। स्टार B इक्वल्स टू क्या दिया गया है? AB by 4 फॉर ऑल A, B कहाँ से बिलोंग कर रहा है? Q से बिलोंग कर रहा है क्या नहीं? नाउ B स्टार A क्या आएगा? उल्टा कर दो, BA by 4, क्या फर्क पड़ता है? AB by 4 BA by 4 दोनों तो सेम ही है कि नहीं? तो दैट मीन्स A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सो स्टार इज कम्यूटेटिव, इजीली वी कैन सी कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, इजीली वी कैन सी, है? इट्स अ सिंपल वन। फिर उसके बाद एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है कि नहीं? अब एसोसिएटिव में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसोसिएटिव में सपोज A स्टार B स्टार C, ओके? अब ये दोनों फर्स्ट वेक्टर का काम करना है। सिमिलरिटी तो देखो, मल्टीप्लीकेशन बाय 4, जो भी एलिमेंट्स हो, सिमिलरिटी क्या है? दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पर B और C है, तो यहाँ पर A स्टार तो है ही, B और C तो BC by 4 होगा, है कि नहीं? अब देखो ये दोनों एलिमेंट है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A इंटू BC by 4 होल by 4, है कि नहीं? देखो ये दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 4 करना है, दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, सिमिलरिटी पूरा देख लो, दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर भी दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 4। आंसर अल्टीमेटली ABC by 16 आ रहा है शायद, देखो ABC by 16, है कि नहीं? हाँ, अब देखो नाउ A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम AB by 4, ये दोनों का देखो AB by 4 स्टार C, ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, AB by 4 इंटू C होल बाय 4, क्योंकि होल बाय 4 होता है, जो भी एलिमेंट्स को दोनों को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। यहाँ पर भी देखो ABC by 16 ही आ रहा है, तो दैट मींस यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये एंड दिस। सो स्टार इज एसोसिएटिव, सो स्टार इज
एसोसिएटिव यहाँ पर देखो ये भी प्रूफ हो गया, स्टार इज एसोसिएटिव प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने टोटल कितना क्वेश्चंस किया है, 7 क्वेश्चंस किया है। 7 क्वेश्चन में देखो ये सब ऐसे ही तुम्हें कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन मेकर जो है वो दे मे गिव यू द एक्चुअली a newly constructed question from his mind as well. Okay, that means this type of questions can be constructed from your mind as well. So this question maker may give you the new type of questions from his mind. So just you have to proceed like this solutions. Okay, like this process. Okay, the algorithm and the steps will be same. Okay, and then our next question is, just write the question here. Okay, just write the question. Our next question is question number 8, I think, no? Star is a binary operation on n. Yes, the natural number set is given. Okay, that means जितना सारा मारामारी जितना सारा फाइट हो रहा है वो नेचुरल नंबर के ऊपर हो रहा है। That means पार्टिसिपेंट भी नेचुरल नंबर से होगा और आउटपुट जो विनर होगा वो भी नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए, ठीक है? So that means which is given by a star b equals to 2 to the power ab. Okay, for all a comma b belongs to the natural number set. Natural number means no positive value can be chosen here. All the positive values will have to be chosen. Okay, and positive value means no the fraction, that means the fractions and the irrational numbers cannot be chosen. Or only the round figure numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 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 plus infinity. Okay, check whether it is commutative and associative or not. Okay, now the solution, just let's start the solution here. Given a star b equals to 2 to the power ab here, that means just look at the similarity. 2 will be fixed and the power, the elements will be multiplied. 2 will be fixed. Whatever the values of a and b, the similarity will be the same, 2 to the power ab. Okay, just if you are choosing a equals to 1 and b equals to 2, then 2 will be fixed, but in place of a and b, 1 into 2, that is 2 square, answer is 4. 4 is also a natural number. Okay, so that means here a and b values, whatever you can choose, no problem, but the similarity is 2 to the power ab. That means 2 will be fixed and ab, in place of ab you have to put the values whatever is chosen. Okay, now for the commutative property here, a star b equals to 2 to the power ab. Very good. B star a equals to 2 to the power ba. I think here 2 to the power 1 into 2, 2 to the power 2 into 1, answer is same. So answer will not be changed if you are interchanging the positions of a and b. So a star b equals to b star a. So star is what? Commutative. Star is commutative as well. Okay, so the next just write the part, and the associative property is going to be chosen, going to be checked now. Okay, whether it is associative or not. Okay, just associative property. Just okay, a star b star c. That means a star b क्या होता है? 2 to the power ab. Okay, star c. अब ये तुम्हारे पास दो एलिमेंट है, that means 2 to the power ab into c. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है क्या नहीं? सो इसको तो हम लोग और कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, तो उसके बाद a स्टार b स्टार c, उसको और कैलकुलेशन देखो नहीं हो सकता, उसका कैलकुलेशन क्या होगा और इसका कैलकुलेशन. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो a स्टार b स्टार c मतलब 2 to the power bc. तो दैट मीन्स a, अब ये दो एलिमेंट है, अब 2 to the power a into 2 to the power bc.
देखो कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है क्या? आई थिंक दिस टू एक्सप्रेशंस आर नॉट सेम. यहाँ पर 2 to the power ab इंटू सी है, यहाँ पर a इंटू 2 to the power bc है. सो यहाँ पर देखो दोनों एक्सप्रेशन जो है वो सेम नहीं है. तो देखते हैं ये दो एक्सप्रेशंस का आंसर जो है वो सेम नहीं हो रहा है. देखते हैं स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. सो दैट मीन्स यहाँ पर देखो स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं हो रहा है. ठीक है. तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो टोटल 8 क्वेश्चंस आर कवर्ड in this lecture. Okay, so and this whatever the questions are discussed in this class, that are all important for the board and for the entrance studies also. Okay, so just see the solutions and just try to understand what is going on in the solution part, and after that related questions, okay, will have to be solved by yourself. Okay, then you will get the idea that no, these steps, after this step is coming, this step is coming. Okay, so here in the various lectures, okay, the various solutions and various things are given. Okay, and after this lockdown you will be provided the more questions from the different chapters as well in the PDF format. Okay, just you can download, and the solutions are also given, and you can download also. Okay, and just you can see the solutions of the different questions as well. Okay, so this binary operation is about to complete. After this binary operation, the relation function chapter will be completed full. Okay, and after that, just I am actually just thinking that we should start the calculus part as well, because in the physics and chemistry subject this calculus part is very much necessary. Okay, for getting the derivation concepts. That means in physics various kinds of derivations are there regarding the integration and the differentiation concepts. Okay, just after this part we will start the calculus part as well. Okay, so in this part, the calculus part, we will discuss various things, very interesting actually this chapter in the 12th class, very interesting chapter. Just you will see that how it can be described. Okay, each and everything will be evolved like in the various way. In the various way, just you can see everywhere the calculus part, the calculus concept are related with your daily activities as well. Just I will give the examples, the practical examples as well. After watching videos, after watching the lectures, that you will get the idea. Yeah, that means you will realize that in calculus part how it can be happen, how it can be related with the daily activities. Okay, so just after this, after watching my video, that you will realize no, these things can be happened. Okay, everywhere this calculus part is there. Everywhere calculus is there. Just I am talking with you. This is the calculus part. The speed, my conversation speed with respect to the time. This is also a calculus. Just I am solving the questions with respect to the time. Also calculus. Okay, so just everywhere. That means the download. If you that means if you are downloading something, then the speed is what? 5 MB per second. If it 5 KB per second, what does it mean? The meaning is that means 5 KB. The speed is 5 KB per second. That means हर एक सेकंड में 5 KB करके डाउनलोड हो रहा है कि नहीं? तो that means ये भी एक कैलकुलस है, ये भी एक कैलकुलस है. So that means everywhere the calculus is there. That means you can see the calculus part can be evolved by using the practical examples also. Just we will describe how to relate with the practical life, with the practical daily activities. Okay, so in this video, just we have to finish it here. And one more thing, just you have to see all the lectures. Okay, all the lectures very attentively, and you have to attempt all the classes. For that, just see the whole video. Just see the whole video. Just don't see this for
for this half and this 1/4, yeah, or 2/4. Okay, so just try to see all the videos and try to get the concepts from the discussion as well. Okay, that means different kinds of discussion was there in various videos. So just try to watch all the videos fully, and after that everything and every problems regarding the relation and function chapter will be removed and will be finished also. Okay, it is my assurance that all the things and all the problems is going to be nil after watching my videos as well. So if you are watching my videos, if you are attending my videos, then just subscribe, share and like with each and everyone. Okay, and last day I think one of our favorite actor Irfan Khan passed away, and he was my favorite actor. Okay, so and today Rishi Kapoor also passed away. So these two legends in the Bollywood industry actually passed away, and just we have to pray for their soul. They may God rest in peace. Okay, so just pray for them, pray for their soul, and also pray for the COVID-19 infected people also. Okay, so just in this video, just we will actually we will play the condolence for 1 minute for for the people, those who couldn't survive against this coronavirus as well, and those who have lost their life, those who have lost their soul as well. Okay, and those who are actually surviving for this COVID-19 because of this pandemic. Okay, so just for 1 minute we will add the condolence here. Okay, so just let's start. Okay, so in this video just we have to stop here, and in the next video we will discuss the distributive property, inverse and identity. That part is very important and little bit conceptual and the tough also. So just in the next video, just see the video, full video you should watch, and after that we'll move to our next chapter. Okay, so thank you very much for watching my channel and subscribing my channel as well. And just this 1%, actually they are not subscribing my channel, but they are watching my videos as well. Okay, just I want to convince you that just please subscribe my channel, and then after that enjoy all the videos. Okay, so just if you are subscribing my channel, that means a little bit encouragement actually are being delivered to me as well from your side. Okay, so just I want to convey my gratitude to all the subscribers and all the viewers of my channel. Okay, and those who are attending my class, and those students are actually very much attentive for the classes as well. Okay, so thank you very much, and bye. Jai Hind.